دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہیروز سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے علم، سائنس یا آرٹس میں کارنامے سر انجام دیے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنے، جبکہ کچھ ہیروز ایسے ہیں جنہوں نے شجاعت، بہادری اور دلیری سے اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج کروا لیا۔ یہ ویڈیو پنجاب کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے 1857 کی جنگ آزادی کے ایک ایسے ہی 81 سالہ بہادر اور جرت مند ہیرو رائے احمد خان کھرل شہید کے متعلق ہے، جنہوں نے انگریز کے خلاف داد شجاعت دے کر اس دھرتی پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ دوستو، رائے احمد خان کھرل کون تھے؟ انہوں نے پنجاب کے راوی کے علاقے میں انگریزوں کو کیسے ناکوں چنے چبوائے؟ شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کا سر کیوں جیل کے دروازے پر لٹکائے رکھا؟ 5 دریاؤں کی دھرتی کے اس عظیم ہیرو کے متعلق یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ دوستو، 18ویں صدی کے آخر تک لاہور اور اس سے ملحقہ علاقہ جات مختلف سرداروں کے کنٹرول میں تھے۔ اس دور میں لاہور پر مختلف حملہ آور بھی آتے رہے، جن میں افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ زمان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ شاہ زمان نے پنجاب پر 4 بار حملہ کیا اور آخرکار 1797 میں لاہور کو فتح کر لیا۔ شاہ زمان کو لاہور میں پوری طرح قدم جمانے کا موقع نہیں مل سکا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے سکھوں کو متحد کر کے لاہور اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں باقاعدہ حکومت قائم کر لی۔ آہستہ آہستہ سکھوں کی سلطنت بڑھ کر پورے پنجاب تک پھیل گئی۔ پنجاب کے علاوہ کشمیر، ہزارہ اور پشاور کے علاقے بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راج میں شامل ہو گئے۔ دوسری جانب انگریز بھی آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے پنجاب پہنچے اور 1849 میں پنجاب سکھوں سے انگریزوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ دوستو، 1857 کی جنگ، جسے انگریز بغاوت یا غدر کا نام دیتا ہے، برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ میں جہاں برصغیر پاک و ہند کی مختلف ریاستوں نے انگریز سرکار کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہیں پنجاب بھی آزادی کی اس لڑائی میں پیچھے نہ رہا۔ انگریزوں کے خلاف اس بغاوت کا ایک سبب وہ کارتوس بتائے جاتے ہیں جو گائے اور سور کی چربی سے بنائے جا رہے تھے۔ بنگال میں کچھ سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو انگریز نے انہیں فوج سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھنؤ میں بھی پیش آیا۔ یہ نکالے گئے سپاہی چند ہی دنوں میں ملک بھر میں پھیل گئے اور انگریز فوج میں شامل ہندوستانیوں کو انگریز کے خلاف اکسانے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک بڑھتے بڑھتے پورے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران میرٹھ کے مقام پر کچھ ہندوستانی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد مزاحمت کی یہ تحریک دلی سے ہوتی ہوئی پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی کے وقت پنجاب 5 ڈویژنز پر مشتمل تھا اور ہندوستان کا زرخیز ترین علاقہ بھی یہی تھا۔ جنگ آزادی میں پنجاب کے زیادہ تر سرداروں اور رئیسوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن کچھ مقامات پر انگریز کو شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ راوی کے کنارے بسنے والے کئی قبائل اس جنگ میں انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ ان قبائل میں کھرل، فتیانہ، وٹو، قریشی، مخدوم، گردیزی کاٹھیا، ترہانہ اور دیگر کئی خوددار قبائل شامل تھے۔ یہ قبائل پاک پتن، منٹگمری یعنی موجودہ اوکاڑا اور ساہیوال، گوگیرا اور ہڑپا وغیرہ کے علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ اٹھارہ سو 1849 میں جب پنجاب انگریزوں کے کنٹرول میں آیا تو انہوں نے اوکاڑا کے قریب گوگیرا کو انتظامی لحاظ سے ضلع کا درجہ دیا۔ اس وقت لارڈ برکلے اس علاقے پر ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھے۔ دوستو، دریائے راوی کے کنارے گوگیرا کا یہ تاریخی علاقہ اب ضلع اوکاڑا کا حصہ ہے۔ دریا کے دوسری طرف فیصل آباد ڈویژن ہے۔ اس فیصل آباد ڈویژن کی تحصیل تاندریاوالا میں موزہ جھامرا واقع ہے، جو رائے احمد خان کھرل کا آبائی مسکن تھا۔ راوی کی پٹی کے اس علاقے کو اس وقت ساندل بار کہا جاتا تھا۔
इसी सांदल बार में उकाड़ा से फैसलाबाद रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर पर छोटा सा कस्बा बंगला गुगेरा वाक़या है, जो उस वक्त अंग्रेज सरकार का ज़िले हेडक्वार्टर था। दोस्तों, राय अहमद खान खर्ल के आबाओ अजदाद मुगलिया सल्तनत के साथ वाबस्ता थे। सांदल बार में झामरा की जागीर इन्हें मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने अता की थी और ये ख़ानदान 150 साल से इस इलाके का रईस और सरदार था। राजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में भी ये ख़ानदान इस इलाके का सरदार समझा जाता था। एक रवायत ये भी है कि राजा रंजीत सिंह ने इसी इलाके के तारीखी मुकाम सैयद वाला में पड़ाव डाला तो उन्होंने राय अहमद खान खर्ल से मुलाकात की थी। वो उस नौजवान सरदार से मिले और बहुत मुतासिर हुए। दोस्तों, दिल्ली और मीरठ की बगावतों की खबरें पंजाब पहुंची तो यहाँ भी मुख्तलिफ कबाइल अंग्रेज के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। इस बगावत का सर कुचलने के लिए लॉर्ड बर्कले ने रावी किनारे बसने वाले मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को बुलाया और बगावत कुचलने के लिए अफरादी कुव्वत और घोड़े मुहैया करने का मुतालबा किया। इन सरदारों में राय अहमद खान खर्ल भी शामिल थे। लॉर्ड बर्कले के इस तकाजे पर राय अहमद खान खर्ल उठे और जवाब दिया, हम कभी किसी भी सूरत अपने घोड़े, औरत और ज़मीन किसी के हवाले नहीं करते। राय अहमद खान खर्ल का ये जवाब अंग्रेज़ के खिलाफ ऐलाने जंग था, जिसके बाद पंजाब में अंग्रेज़ के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक शुरू हो गई। सबसे पहले इस मुजाहिमत का आगाज़ तहसील पाकपतन के एक गांव लखोके के जोइया कबीले ने किया। उन्होंने 8 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ को लगाम देने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ ने इस बगावत का सर कुचलने के लिए पूरे गांव पर हमला किया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके गुगेरा जेल में कैद कर दिया। दोस्तों, राय बहादुर खर्ल को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने 26 जुलाई की रात गुगेरा जेल पर हमला करके तमाम कैदियों को रिहा करवा लिया और रावी की पट्टी पर वाक़या घने जंगलात में रूपोश हो गए। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 17 कैदी मौके पर शहीद, 33 जख्मी जबकि 18 रिहा होने में कामयाब हुए। लेकिन मुकामी ज़राए के मुताबिक इस हमले में 145 से ज़ायद कैदी और 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौज के सिपाही जान की बाजी हार गए थे। रावी के जंगजुओं की इस कार्रवाई पर अंग्रेज़ ने इलाके में लोगों का जीना दो भर कर दिया और जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। अंग्रेज़ के इस जुल्म और सितम पर राय अहमद खान खर्ल के मुजाहिदीन ने भी गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ इलाकों में अंग्रेज़ों को मुकम्मल मफलूज करके रख दिया। दूसरी जानिब लॉर्ड बर्कले ने भी इस बगावत को कुचलने और इलाके पर कब्जा कायम रखने के लिए मुल्तान और लाहौर से फौजी दस्ते मंगवा लिए। इस दौरान राय अहमद खान खर्ल के साथ शामिल आज़ादी के मतवालों की तादाद बढ़ते बढ़ते हज़ारों तक पहुंच गई। राय अहमद खान खर्ल की क़यादत में मुजाहिदीन आज़ादी की अंग्रेज़ के खिलाफ ये कार्रवाई 1857 तक जारी रही। अंग्रेज़ फ़ौज भी इस दौरान मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। सितंबर के आगाज़ में राय अहमद खान खर्ल ने अंग्रेज़ फ़ौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इलाकाई सरदारों और मुजाहिदीन को इकट्ठा किया। इन इलाकाई सरदारों में कमालिया के सरफराज खर्ल और दीगर बहुत से दूसरे सरदार शामिल थे। राय अहमद खान खर्ल ने इन तमाम लोगों को फैसलाकुन जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। दोस्तों, लेकिन 16 सितंबर की रात होने वाले इस खुफिया इजलास की मुखबरी सरफराज खर्ल और कुछ मुखालफिन ने अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर को कर दी। ये इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड बर्कले को हमरा लेकर राय अहमद खान खर्ल की सरकोबी के लिए झामरा रवाना हो गया। अंग्रेज़ का ये दस्ता झामरा पहुंचा तो गाँव के ज़्यादातर लोग रूपोश हो चुके थे। लॉर्ड बार्कले ने गुस्से में झामरा को आग लगा दी और 20 मुकामी अफराद और सैकड़ों मवेशियों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। दूसरी जानिब जब राय अहमद खान खर्ल ने मुजाहिदीन के हमरा बंगला गुगेरा पर हमला किया तो मुखबरी की वजह से अंग्रेज़ पहले से तैयार बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन को आते देखा तो गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे बहुत से मुजाहिदीन शहीद हो गए। इस सूरत हाल में राय अहमद खान खर्ल और मुजाहिदीन पीछे हटकर नूरे की डल नामी एक जगह पर आ गए। यहाँ से झाड़ियों में छुपते हुए बर्कला की फौज के करीब पहुंचे और उन पर अचानक हमला कर दिया।
इस हमले में अंग्रेज का भारी जानी नुकसान हुआ, जिसके बायस अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। ये मुआरका लगातार 3 दिन तक होता रहा। अंग्रेज ने कई भरपूर हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खाना पड़ी। मुजाहिदीन अचानक ढोल पीटते हुए हमला करते और तेजी से निकल जाते। मशहूर मौर्रख के ब्राउन के मुताबिक ये लोग ढोल पीटते हुए हमलावर होते और बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज फौजियों से हथियार छीनकर फरार हो जाते। इस हवाले से वो मजीद लिखते हैं कि कशकोरी के मुकाम पर होने वाले इस मार्के में 3 से 5 हजार लोग शामिल थे, जो लंबी लंबी झाड़ियों में छुपे हुए थे। पंजाब म्यूटनी रिकॉर्ड में इस बारे में तहरीर है कि इन 3 दिनों में ये जंग नूरे की डल से बढ़कर कशकोरी के जंगलात और हड़प्पा के मैदान तक फैल चुकी थी और तकरीबन 40 से 50 मील के इलाके में 20 से 30 हजार से ज़ायद जंगजू फैल चुके थे। दोस्तों, 20 सितंबर 1857 तक ये बगावत इर्द गिर्द के तमाम इलाकों तक फैल चुकी थी और मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से अंग्रेज फौज का भारी जानी नुकसान हुआ था। उस वक्त मुजाहिदीन के दस्ते वापस लौटना शुरू हो गए थे। दूसरी जानिब 20 सितंबर को ही डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अल्फिंस्टन को मुखबरी मिली कि राय अहमद खान खल और उनके साथी कशकोरी के जंगल में छुपे हुए हैं। अगले रोज यानी 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज फौज का एक दस्ता इस मुकाम पर पहुंचा। एक मुकामी सिपाही धारा सिंह ने राय अहमद खान खल की निशानदेही की, जो उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। धारा सिंह, गुलाब सिंह बेदी और खेम सिंह बेदी ने अंग्रेज के कहने पर राय अहमद खान खल पर गोलियां चला दी और वो वहीं मौके पर शहीद हो गए। इस हमले में राय अहमद खान खल के करीबी साथी सरदार सारंग समेत कुछ और साथी भी शहीद हुए, जबकि अंग्रेज के अपने 20 सिपाही भी इस झड़प में मारे गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक राय अहमद खल को शहीद करने के बाद अंग्रेज उनका सर काट कर साथ ले गए और 6 दिन तक गुगेरा जेल के सामने लटकाए रखा। 21 सितंबर को राय अहमद खल शहीद हुए तो उनकी शहादत का बदला लेने के लिए उससे अगले दिन फतियाना कबीले के एक बहादुर नौजवान मुराद फतियाना ने कूड़े शाह के मुकाम पर मुजाहिदीन की एक कुमक के साथ लॉर्ड बर्कले पर भरपूर मंसूबाबंदी के साथ हमला किया। मुराद फतियाना ने बर्छियों के वार करके लॉर्ड बर्कले को वहीं ख़त्म कर दिया, जबकि इस हमले में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर गुगेरा, लॉर्ड बर्कले के अलावा दूसरे अंग्रेज फौज के सिपाही भी हलाक हुए। राय अहमद खान खल के जस्द खाकी को झामरा के मुखियाना कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनका मज़ार उनकी वफ़ात के 110 साल बाद उनके पड़पोते नवाब राय अली मोहम्मद खान ने 1968 में 1968 में तामीर करवाया। इसके अलावा कुछ अरसा कबल राय अहमद खान खल शहीद के एजाज़ में फैसलाबाद के एक चौक को राय अहमद खल शहीद के नाम से मंसूब किया गया। दोस्तों, राय अहमद खान खल जंग आज़ादी के अजीम पंजाबी हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियां की, जिनमें से उनके 4 बेटे हुए। उनके औलाद में से बहुत से लोग सियासत में भी आए और मुख्तलिफ अदवार में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स भी रहे। दोस्तों, जंग आज़ादी के इस हीरो की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।